Okay, so what I'll do is I'll remove everything from there. Right, so this is my array. It has 3 plus 3, 6 elements. So can you tell me what would be length of this array? Or if I print console.log arr1 dot length, what will it print? What will this thing print? It will print how many elements are there in the array. So kitne elements are there? Are 6 elements. So it will print 6. Right, that is what we have done here. Right, then next is what we would try to learn is we would try to take a look at a for each loop. What we saw till now is a for loop. Now we will see another loop which is for each loop. Now what does for each, like the name suggests, for each means for each element in an array. That is what for each means. Right, so I would say for each, sorry, arr1 dot for each, right, and inside for each what I'll do is I'll give x and inside x like this. So what is this? This is a simple function, right, with one variable. And if I say console.log x, what will it do is it will print all the elements of the array one by one. For each is not a function because e is capital. Okay, my bad. Right, so what अब इसमें ये लेंथ भी प्रिंट हो गया है, इसको भी हटा देता हूँ. Okay, now what it is doing is again it is printing all the elements of an array, right, but this time it is using a for each loop instead of a normal for loop. Right, now what we are doing is for each, again it is nothing but a function. If you look at it in this way, it is nothing but a function, right, जैसा हम लोग fun या कोई और function कॉल करते हैं वैसा. And inside this function, in its input or in its argument or in its parameter, we pass another function. Right, so this is the function which we are passing here. Right, you can also write it like this. You can say function with a single parameter x even this would do the same. So what I am doing is I am passing a function inside another function, right? Such type of functions, they are called as callback functions. So what is a callback function? A function which is passed as a parameter to another function. It is called as callback function. ठीक है, तो this is also one of the क्या कहते हैं one of the types of loops, right? Now this particular callback function which the for each accepts, it can accept two parameters as well, I as well. Now if you print I, like this, so it will print you the index. So it will print 0, 10, 120, 230, 350 likewise. Right, so it printed the index. तो it is as good as एक अपना for loop जैसा है वैसा ही है. Right, no rocket science. कुछ ऐसा अलग या ऐसा separate कुछ नहीं किया है हमने. Right, so what I want you guys to do is कि ये for each loop से कोशिश करना ये करने की. So can you guys tell me what is an array? Just tell me before I move forward. I need to know it from you. What is an array? List of elements or collection of elements, you can say.
right? Then how do you declare an array? Right, you do that using square brackets. तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स जब आप देते हो तो एरे होता है ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स, राइट? सो कॉमा के आजू बाजू के एलिमेंट्स दे आर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, राइट? that is what, that is the declaration of an array. Then what you do, or how do you access elements of an array? You access the elements of an array using index. What is index? Index, it starts from 1, it starts from 0 and it goes up to length minus 1. What is length? Length is nothing but total number of elements of an array. Right, now we can use loops to iterate over the array. We can use loops to iterate over the array. राइट, तो आप वो वाइल से करो, डू वाइल से करो, फॉर से करो, फॉर ईच से करो, किसी से भी करो. क्लियर है यहाँ तक? क्या नहीं समझा बोल रहा है? ये वाला नहीं समझा. फॉरगेट अबाउट दिस. इसको थोड़ा सा जब कॉल बैक फंक्शन अच्छे से समझेंगे ना तब करते हैं. फॉरगेट अबाउट इट. बेसिक एरे समझ में आया है? ओके. सो और फॉर लूप समझ में आया? सिंपल फॉर लूप या वाइल लूप, ये समझ में आया ना? कॉल बैक फंक्शन पे बाद में जाते हैं. फॉर लूप वाइल लूप समझ में आ गया ना पक्का? कौन सा लूप रिपीट करूं? अच्छा, दोनों. ठीक है, ठीक है. ठीक है, let us say if I give you a task to print numbers from 1 to 1000, right? And you do not know anything about loops. So how will you print the numbers? You'll say console.log 1. Then you'll say console.log 2. Right? Then you'll say console.log 3. Right? And this you would continue till 1000. Am I correct? Am I correct in saying this? That we'll have to write 1000 console.log statements, and inside each statement I'll have to pass what I need to print. Barabar? Okay. Now, a better way to do this is by using loops. Right, so I'll have some variable, I'll say let I equals to 1. Then I'll say while I is less than 1000 or less than equals to 1000. And inside this I'll simply say console.log I. And after this I'll simply say I++. I++ is nothing but incrementing the value of I. So if a value of I is 1, then it will become 2. If it is 2, it will become 3, and so on. Right, if you check this, है तो इसने ये 1 से लेके 1000 तक प्रिंट किया. ये समझ में आया कि लूप का यूज क्या है? तो यू हैव टू ऑप्शंस. एक तो 1000 बार लिखो console.log स्टेटमेंट्स, या तो व्हाट इज अनदर ऑप्शन? अनदर ऑप्शन इज यूज लूप. तो 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट में तुम्हारा काम हो गया. यहाँ तक इज इट क्लियर? सर वो कंसोल हमेशा लेंगे क्या? हमेशा लेंगे क्या मतलब? समझा नहीं मैं. सर मतलब वो कंसोल डॉट जो
हाँ, वो जो स्टेटमेंट है वो हमेशा यूज करेंगे। हमेशा यूज करेंगे का मतलब नहीं समझा मैं तुम्हें। सर मतलब जैसा कोई व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं, हाँ वो जो कंसोल डॉट जो लॉग है हाँ, वो यूज करना जरूरी रहेगा व्हाइल के बाद में। नहीं, कंसोल डॉट लॉग का काम क्या है, तुम्हें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके ऊपर है। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, यहाँ पर प्रिंट करता है, कंसोल पे प्रिंट करता है। तो लेट से मैं ये कंसोल डॉट लॉग हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं यहाँ लगाता हूँ। तो अब क्या होगा, राइट, ये पहले 1 है, आई की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू 1000 ट्रू, आई विल बिकम 2, 2 लेस देन 1000 ट्रू, आई विल बिकम 3 एंड सो ऑन। ये कब तक चलेगा, टिल आई बिकम्स 1001, एंड व्हेन आई विल बिकम 1001 इट विल प्रिंट 1001, है ना। तो ये बाकी चीजें प्रिंट नहीं होगी। लेट्स चेक दैट आउट। ये 1 2 3 तो यहाँ से प्रिंट हुआ, बट अदर देन दैट हमने 1001 प्रिंट किया। अब मैंने ये कंसोल डॉट लॉग को व्हाइल के बाहर प्रिंट किया है, तो इसीलिए एक ही बार प्रिंट हो रहा है। लूप में क्या हो रहा है, ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है दीज आर गेटिंग रिपीटेड कंटिन्यूसली। कब तक रिपीट होगी, जब तक ये कंडीशन फेल नहीं होगी। ये कंडीशन कब फेल होगी, व्हेन आई वुड बिकम ग्रेटर देन 1000। क्लियर? यस सर। Okay. So same thing can be done using a for loop. You can say for I equals to 1, I less than equals to 1000, I plus plus. Right, inside this you can, अच्छा इसके बाद भी अगर मैं अंदर कुछ नहीं लिखता, and if I say console.log I, this would again simply print 1001. ये पहला यहाँ से प्रिंट हुआ लाइन नंबर 38, एंड दूसरा जो है वो प्रिंट हुआ लाइन नंबर 44। अंडरस्टूड? हाँ बोलो। सर ये जो आई प्लस प्लस है वो कंसोल डॉट लॉग आई की बाद में लिखेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, आई की वैल्यू आई प्लस 1 हो जाएगी, या आई प्लस प्लस, एंड इफ आई से कंसोल डॉट लॉग ऐसा, तो क्या होगा, आई की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1001 है, फिर उसकी वैल्यू यहाँ हो गई 1002, और यहाँ हो जाएगी 1003। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, इट विल प्रिंट 1003, एंड हियर इट विल अगेन प्रिंट 1001। वाई? बिकॉज हमने वापस आई को 1 कर दिया है। यहाँ पर 1001 थी, फिर हमने 1002 करी, फिर हमने 1003 करी, एंड उसके बाद हमने 1003 को प्रिंट कराया। क्लियर? समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? अरे कुछ तो बोलो। नहीं, बाकियों को समझने दे, तुझे समझ गया ये मैं समझ चुका, बट इनको समझने तक लेट्स डू इट। हाँ पलक, आचल, यस सर समझा। ओके ठीक है। ठीक है, तो ये लूप का मतलब क्या है, लूप का मतलब ये है कि टिल द कंडीशन इज ट्रू, राइट, दिस ब्लॉक वुड कीप ऑन रिपीटिंग। मतलब ये केस में आई प्लस प्लस 1000 बार होगा, 1 से लेके 1000 तक, जब तक ये होगा तब तक ये चलता रहेगा, इसीलिए यहाँ उसकी वैल्यू 1001 होगी। ठीक है, नाउ डू वाइल में क्या होता है,
नाउ कैन यू टेल मी यहाँ क्या प्रिंट होगा? इससे मुझे पता चलेगा तुम लोगों को समझेगा कि नहीं, समझा है कि नहीं समझा। बता सकते हो यहाँ क्या प्रिंट होने वाला है? स्पेशली आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? सर नंबर्स प्रिंट होंगे 0 से लेके 1000 तक। 0 से लेके 1000 तक, वो क्यों? सर क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 1000 है ना, हाँ, आई की वैल्यू 0 रखेंगे। पर हमने आई की वैल्यू 0 रखी है क्या? और प्रिंट क्या होगा यहाँ? ये जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक वुड बी रिपीटेड। तो हमने यहाँ कुछ प्रिंट कराया है क्या? हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया। हमने यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं कराया है, राइट। तो अगर लूप में प्रिंट नहीं कराया है तो वो प्रिंट वहाँ नहीं होने वाला, वो लूप के बाद में प्रिंट होने वाला है, इधर प्रिंट होगा जो भी होगा। तो एक ही बार कुछ तो प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? तो यहाँ ये स्टेटमेंट पर आने के बाद जो भी आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। So tell me what would be printed here? Only one value of I would be printed here. What would be that value? क्या होगी that value? Any guess? यहाँ क्या प्रिंट हो रही थी? लाइन नंबर 46 पे क्या प्रिंट हो रही थी आई की वैल्यू? वन 1001, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? डू वाइल लूप है। तो डू वाइल में क्या होता है कि दिस स्टेटमेंट और दिस ब्लॉक इट इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, राइट। तो यहाँ क्या होगा? दिस वैल्यू इट वुड बिकम 1002। 1002 होने के बाद में ये चेक करेगा, इज 1002 लेस देन इक्वल्स टू 1000? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, राइट। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा? यहाँ प्रिंट होगा आफ्टर डू वाइल एंड इसके बाद द वैल्यू ऑफ आई। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? इट इज 1002। बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गई, उसके बाद ये दोबारा नहीं होने वाला। See what happens here. After do while again the value is 1002. Is it clear? ठीक है, what I'll do is I'll take a few more examples. Okay, I'll say let I equals to 1. Then I would say while I is less than 50, I would say I plus plus, and I would say console.log I. So now can you tell me what would be printed here? सर 51। 51 थोड़ा गलत। 49 भी गलत। 49 भी उतना ही गलत जितना 51 गलत।
50 will be printed. क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ कंडीशन जो है वो आई लेस देन इक्वल्स टू 50 नहीं दी है, मैंने कंडीशन आई लेस देन 50 दी है, राइट? तो आई मेरा 1 है, 1 के बाद में राइट ये 2 होगा, 3 होगा, जब ये आई की वैल्यू जब 50 होगी, राइट, दिस कंडीशन वुड बी फॉल्स, राइट? क्यों? बिकॉज हमने आई लेस देन 50 बोला है, तो 50 इज नॉट लेस देन 50, इसीलिए वो यहाँ आएगा एंड इट विल प्रिंट 50. क्लियर? Okay, great. Then let j equals to, I'll say 20. Then I would say while I is less than 20, अच्छा ऐसा भी नहीं करते. I'll say let j equals to 10, right? And I'll assign I equals to 5. And I would say while I is less than j, and inside this I would simply say console.log I, right? Then I would say I plus plus. Now can you tell me what would be printed? कहाँ से लेके? 6 से लेके या 5 से लेके? ओके, लेट अस चेक. ये हटा देता हूँ मैं. 5, 6, 7, 8 एंड 9. क्यों? बिकॉज आई की वैल्यू क्या है? 5. फिर चेक हुआ 5 लेस देन 10, ट्रू, इट विल प्रिंट 5, आई विल बिकम 6. 6 लेस देन 10, ट्रू, this will print 6, I will become 7. 7 less than 10, true, it will print 7, I will become 8. 8 less than 10, true, I will become 9. 9 less than 10, true, right? 10 will be printed, sorry, 9 will be printed and I will become 10. 10 less than 10 is false. It will come out. Clear है अभी? चलता ना, चलता ना, ये हटाना पड़ेगा. वो तो क्या वेरिएबल से कैसे भी डिक्लेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये समझ गया? लूप समझ गया? यस सर. ओके, ग्रेट. एक कंडीशन और देखते हैं. I'll say let I equals to 1, j equals to 50. Then I'll say for I equals to 1, I less than equals to j, I plus plus, and I would say if I mod 2 equals to 0, then I would say console.log I into I, and here what I would do is instead of
50, I would take it as 5. Right, now tell me what would be printed. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट ज़्यादा नहीं. क्या प्रिंट होगा अभी? सर 1 to 5 के बीच में के इवन नंबर्स. 1 to 5 के बीच में के इवन नंबर्स. आंसर इज रॉन्ग. चेक कि मैं प्रिंट क्या करवा रहा हूं. व्हाट इज आई स्टार आई? यस, उनका स्क्वायर आएगा. राइट, तो 1 to 5 के बीच में जो इवन नंबर्स है सिर्फ उनका स्क्वायर आएगा. सो दिस विल प्रिंट 4 and 16. क्लियर? ओके, नाउ एक और एग्जांपल ले लेता हूं. नाउ टेल मी व्हाट वुड बी प्रिंटेड. ये अगर समझ गया तो लूप समझ जाएगा. कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, सॉरी. हाँ, अब बताओ व्हाट वुड बी प्रिंटेड एंड व्हाई एज वेल. मार्कशीट के पैमाने को बदलकर क्या प्रिंट होगा? See, now what happens is, what I am doing is inside console.log I am calling a function. तो मतलब क्या कि ये RES जो भी रिजल्ट रिटर्न होने वाला है वो प्रिंट होने वाला है. बराबर. अब ये 5 गया x में एंड ये 2 गया y में. सर 10. क्या प्रिंट होगा? हाँ, सोचो सोचो. x में 5 गया एंड y में 2 गया. रिजल्ट 10 है. रिजल्ट में 10 रहेगा बोल रहे हो? दैट इज रॉन्ग. सर 5. रिजल्ट में 5 आएगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. सर 15 हो सकता. 15 is also wrong.
ये ऐसा वाला एग्जाम्पल है जिसमें तुम्हारा तुक्का काम नहीं करेगा. See, now what I am doing here is, this will print 25. That is 5 raised to 2. Let's check if it does. Right, it printed 25. मतलब 5 raised to 2. अब मैंने यहाँ क्या किया है, x में x हैज़ वैल्यू 5 एंड y हैज़ वैल्यू 2. राइट, अब मैंने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट और मैंने उसे बोला 1. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लूप जो है उसको 2 बार चला रहा हूँ. 2 बार मतलब 1 से लेके तो 2 तक. तो ये इटरेशन, ये वाला ब्लॉक कितनी बार रन होगा? 2 बार रन होगा. डू यू अग्री और डोंट यू? Yes, sir. Right, so this block would be run twice. Now what I am doing is, I am saying result equals to result into x. So when I is 1, यानी फर्स्ट टाइम जब रन होगा तो रिजल्ट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 into 5. तो रिजल्ट वुड कंटेन 5. I would become 2. Yes. Right? I becomes 2. 2 less than equals to 2. Again true. Result would be 5 into again 5, which is 25. Then I will become 3. 3 बनेगा. 3 less than equals to 2 is false. तो रिजल्ट में there would be 25. Correct? Yes, sir. अब क्या होगा? मैंने 5,2 के बदले 5,3 दिया. Five का क्यों? So this loop will run 3 times, right? तो 3 times क्या होगा? पहली बार 1 into 5, second time 5 into 5, which is 25, and third time 25 into again 5, which will be 125. So what it would print is 125. Clear? Yes, sir. है ना? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा बट ठीक है. ये चीज़ की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा आगे नहीं जाते.